Assalamu alaikum, boys and girls. Me again, Sajid Jafri at the front of you. Alhamdulillah, we are going to finish alkanes or gradually hope you are making a good practice about how to give the name to the corresponding alkane family members. If the structure is given to you, from the given structure you can give the name. Of the name is given to you, you can write the structure. In this regard, a very huge practice, keeping all corners in my mind, I shared with you. Hope you are enjoying with the nomenclature. Alhamdulillah, there is a good news. Very soon we are going to start your physical classes. If you have some queries on the problem, inshallah, we will deal face to face. But without wasting time, we are moving ahead. जो लास्ट मेरा लेक्चर था उसमें मैंने कुछ मजीद डिफ़िकल्टी लेवल को व्हाट से इन्हेंस किया और उसमें मैंने बिसाइड मिथाइल और इथाइल ग्रुप मैंने प्रोपाइल ग्रुप्स, नॉर्मल प्रोपाइल, सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल जैसे ग्रुप्स को मैंने डिस्कस किया मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर. बॉयज एंड गर्ल्स, you have free hand to attempt the questions given in your book related to nomenclature of alkanes, but not only common system ना. common system इंशाल्लाह जो मेरा next lecture होगा वो common names of alkane के context में होगा ना. लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो focus, आपकी जो priorities हैं, alphabet names, ठीक है? Keeping my dialogue in your mind, don't go on the fashion or design of molecule. Selection of the longest possible chain, give the numbering to the chain, explore the individual alkyl groups attached to that parent chain, write their name. If they are same, use the triad tetra. If they are different, write their name in alphabetical order. These all things I have shared with you, and you hopefully you are making a good practice about it. Now, okay. So now. It was my last lecture. After completion of that lecture, there were the three articles I had written as a home task. मैंने बोर्ड पे लिखा था ये आपका home task है और nobody is interested to work on it. I think so. Very few students ask me the question on WhatsApp. सर ये हमने आपका जो home task था उसके ऊपर हमने काम किया है. Just check it out. मैंने check किया और उनमें बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल correct सॉल्व किया था उन्हें. अगर आपने भी वो सॉल्व नहीं किया तो उसे सॉल्व कर लें. कल के लेक्चर के अंदर हम उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन आज जो हमारा टास्क होगा वो अल्केन ही से रिलेटेड अनदर इम्पॉर्टेंट टास्क है. छोटा सा टास्क है लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट होगा. दैट्स व्हाट यू नो दैट साइक्लो अल्केन्स. आइए जरा देखिएगा प्लीज.
girls, the saturated hydrocarbons, alkanes are saturated hydrocarbons. अभी तक हमने पढ़े थे all of these were open chain. Don't forget it. हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा था the open chain compounds and closed chain compounds, the classification of the organic compound based on structure. Open chain, closed chain, saturated, unsaturated, remember or not? तो बिल्कुल इसी तरह याद रखिएगा अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अभी हमने बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन आज के जो पार्ट है ना वो है साइक्लोअल्केन. साइक्लो मींस द रिंग चेन स्ट्रक्चर, यानी कि द कंबाइन and the carbon to carbon to carbon forming a closed chain structure. Such type of alkanes are same, the saturated or even open chain or closed chain, they are saturated because carbon to carbon only single bond. But what is the difference? Previously we were talking about the open chain compounds, but now today we are going to discuss the closed chain saturated hydrocarbons, so called cycloalkane. Cycloalkanes का जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, देखिए जनरल फार्मूले की इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूँ कि बाय यूजिंग दैट जनरल फार्मूला यू कैन डिड्यूस द करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेट कंपाउंड. द जनरल फार्मूला इज CnH2n. अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अल्केन हम अल्कीन्स पढ़ेंगे ना नेक्स्ट इन फ्यूचर, तो अल्कीन्स का भी जनरल फार्मूला यही है CnH2n. याद रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा रिमेंबर दैट साइक्लोअल्केन्स एंड अल्कीन्स में आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था आइसोमेरिज्म, द डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो याद रखिएगा द जनरल फार्मूला अल्कीन को भी रिप्रेजेंट करता है और यही जनरल फार्मूला अल्केन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फर्क क्या होगा? अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड, कार्बन टू कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, बट अल्केन्स आर सैचुरेटेड. इस बात का मतलब क्या है? इन फ्यूचर क्लासेस के दौरान ये आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूँ, लेकिन ये बात नॉलेज के लिए आपके लिए मैंने अभी बोर्ड पर लिखी है. देखो बेटा, तो आइए हम इसके ऊपर मजीद थोड़ा सा एक दो सेंटेंस में चाहूंगा कि और लिखूंगा आपके लिए, फिर हम इसकी प्रैक्टिस के ऊपर बात करेंगे ना. बेटा याद रखिएगा इनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, सब कुछ वही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है एज सच. अब इसके नॉमेनक्लेचर में क्या है ये देख लीजिएगा. नॉमेनक्लेचर में सिंपली आपने इन्हें लिखना है. कौन सा सिस्टम? हम डेफिनेटली हम उसको फॉलो कर रहे हैं. सिंपली दे आर रिटन एज साइक्लो प्लस अल्केन इज इक्वल टू कलेक्टिवली कोई मुश्किल बात नहीं है, जरा एक मिनट रुकिएगा ना. अब इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल से बॉयज एंड गर्ल्स, इधर देखिएगा, इधर देखो बेटा, 1 2 3 कार्बन. अब मुझे एक बात बताए, अकॉर्डिंग टू शरीयत 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है. अब देखिए बिल्कुल इसी कंट्रास्ट में एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं आपको लाना चाह रहा हूं कि आप एक कंफर्ट जोन में आ जाए ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाए, ठीक है. इधर देखना एक मिनट. अभी हमने लिखा 1 2 3 1 2 तो बाकी 2 हाइड्रोजन, 1 तो बाकी 3 हाइड्रोजन, 1 तो बाकी 3 हाइड्रोजन. अब मुझे बताओ हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 3 कार्बन है ना, तो इसका नाम क्या होगा जी? प्रोप. और सिंगली बॉन्डेड सफिक्स क्या होगा? n. वी हैव मेड गुड प्रैक्टिस, हमने बहुत प्रैक्टिस की ना इसकी. CnH2n +2 जनरल फार्मूला, 1 2 3 कार्बन देखिएगा एक मिनट बेटा, C3H8 3 and 3 6 into 8 है जनरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन. अब इसको इस तरह लिखने का मकसद क्या है? कंपैरिजन, ताकि वो जो बात में फार्मूले के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं ना वो आप समझिए. अब इसको देखिएगा, मुझे बताइए प्लीज, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 1 2 3 प्रोप. आप क्या लिखेंगे जी? प्रोप. भाई 3 कार्बन है, प्रोप. सिंगली बॉन्डेड है, सफिक्स होगा n, प्रोपेन.
अच्छा देखो, ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, लेकिन मुझे बताओ दोनों में फर्क है या नहीं? ये है ओपन चेन, जबकि ये क्या है? क्लोज चेन। इट इज वन ऑफ साइक्लोअल्केन। तो उससे पहले हम यूज करेंगे साइक्लो, तो इस कंपाउंड का पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब आपने देखा, अब जरा देखें, प्रोपेन ये भी है, प्रोपेन ये भी है, लेकिन फर्क क्या है? ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है। कॉमन क्या है? कार्बन कार्बन वही सिंगल बॉन्ड, वही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, लेकिन क्योंकि क्लोज चेन स्ट्रक्चर है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू ओपन चेन इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे कम। देखो इसमें क्या है? C3H8, तो इसका फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस CnH2n, यानी कि इसका फार्मूला होगा हमारे पास, इसका जो फार्मूला होगा हमारे पास, सो सिंपल, C3H6। ये लीजिए, 2 हाइड्रोजन का फर्क है। क्यों? क्योंकि कॉर्डिनेट्स एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, तो कॉर्डिनेट से एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओपन चेन। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर समझिएगा, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आसान सी बात है। प्रोपेन ये भी है, प्रोपेन ये भी है। फर्क क्या है? ये ओपन चेन है, एक ओपन चेन में 2 हाइड्रोजन हमेशा ज्यादा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लोज चेन, क्योंकि ये फॉर्मूला ओबे करता है CnH2n+2, जबकि ओपन चेन का फार्मूला और क्लोज चेन के फार्मूले में 2 हाइड्रोजन का फर्क आ जाता है, CnH2n। इज दैट क्लियर? यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन मस्ट बी ट्वाइस, यानी कि C3H8, C4H8, लाइक दिस, C3H6, C4H8, C5H10। जबकि ओपन चेन होता तो +2 का फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाता। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी थी ना, तो रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मजीद हम, इसी मॉलिक्यूल को बेटा आप लिख सकते हैं सो सिंपल, आसानी से। हर कॉर्नर पे बस CH2 है, आप इसे इस तरह लिख सकते थे। ये देखिए, कोई नई बात नहीं है, ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूं। CH2, ये लीजिए, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और डोंट फॉरगेट इट, एक और भी तरीका मैंने आपको बताया था, रिमेंबर और नॉट। इसी मॉलिक्यूल को आप सिंपली लिख सकते हैं लाइक दिस, अ ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत फोकस किया था आपको जब मैंने अल्केन शुरू कराया था उस वक्त। एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6, स्ट्रक्चरल फार्मूला एट द फ्रंट ऑफ यू, जिसमें आपने बॉन्ड्स को शो किया, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उसी को शॉर्ट हैंड राइटिंग में इस तरह लिखना, दैट इज सेड टू बी स्केलेटल फार्मूला। तो ये जो हमारे पास ट्राइगोन नजर आ रहा है, दैट शोज ईच कॉर्नर शोज कार्बन विद रिस्पेक्ट टू, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अच्छा, डोंट गो इन द फैशन ऑफ डिजाइन, आप इसी को इस तरह लिख सकते हैं, ये लीजिए, एक ही बात है। और आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैंने ऐसे बनाया, वो ऐसे बनाया या नहीं। डोंट गो द फैशन ऑफ डिजाइन, होप यू विल गेट इट ना। अच्छा, आइए मजीद बात करते हैं, ठीक है। अब आइए इधर देखिए प्लीज, एनालिसिस स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल से, ये देखिए, अब देखो 1 2 1 2, तो बाकी 2 हाइड्रोजन, थोड़ा सा जल्दी, 1 2, तो बेटे 2 हाइड्रोजन। कार्बन की शरीयत का खास ख्याल रखना है, 1 2 तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 तो 2 हाइड्रोजन। ये लीजिए, अब मुझे बताइए प्लीज, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स आर देयर? 4 कोऑर्डिनेट्स, ब्यूट, सिंगली बॉन्डेड है N, ब्यूटेन। क्लोज चेन है, ओपन चेन? क्लोज चेन है, हम लिखेंगे व्हाट? साइक्लोब्यूटेन। कंपाउंड का नाम क्या होगा जी? साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, इसी मॉलिक्यूल को हम लिख सकते हैं सो सिंपल, इसी मॉलिक्यूल को हम लिख सकते हैं by means of N, like this. Each corner shows CH2 CH2 CH2। अच्छा, वही बात, डोंट गो द फैशन ऑफ डिजाइन, तो इसी मॉलिक्यूल को आप और खूबसूरती में चाहें तो लिख सकते हैं like this। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईच कॉर्नर शोज कार्बन,
with respect to carbon, corresponding number of hydrogen atoms are attached. तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, आइए मजीद बात करते हैं और मजीद बात करना चाहूंगा। ये लीजिए बेटा, लिसन ऑल, इधर देखिए, like this। अब इधर देखिए, इसमें देखिए बेटा, लिसन, 5 carbon, you may write or you may write the same molecule, or you may write the same molecule like how many carbons are there? 5 pent. Suffix n, pentane. Open chain है, closed chain, closed chain नाम क्या होगा? Cyclopentane, or you may write the same molecule like this। तो आपने देखा, जिस तरह आपने पढ़े थे बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो all of these are open chain। Now we are talking about the closed chain। और closed chain में 3 से शुरू होता है, प्रोप, ब्यूट, पेन। तो कॉमन सेंस की बात है, 6 वाला क्या होगा? हेक्स। आइए 6 वाले पे बात करते हैं ना। इधर देखो मेरे बच्चे, लिसन ऑल, ये देखिए, like this। ये लीजिए, इस तरह भी नहीं हो सकता है। अब मुझे बताइए इसमें कितने कार्बन है? 6। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को यू मे राइट, और यू मे राइट सो सिंपल, नॉट बेंजीन। ये देखिए, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 6। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? हेक्सेन, हेक्सेन। लेकिन ओपन चेन है, क्लोज चेन, क्लोज चेन, तो हमारा सफिक्स क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। तो आपने देखा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ओपन चेन। तो बिल्कुल इसी तरह क्लोज चेन भी होते हैं। और क्लोज चेन स्ट्रक्चर कम से कम 3 कार्बन से शुरू होता है, यानी कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, ये सारे के सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्या हम उसमें कोई रेडिकल्स, जैसे कि हमने उस चेन्स में पढ़े थे ना, हमने मिथाइल भी अटैच है, इथाइल भी ग्रुप है, तो क्या इनमें अटैच हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, इनमें भी हो सकते हैं। और आइए जरा देखते हैं कुछ ऐसे इसके हैविंग सम रेडिकल्स अटैच ऑन इट। वेरी सिंपल। आइए इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, फॉर एग्जांपल से CH3 CH2 CH2। ये लीजिए, एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा। अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, ये नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये नहीं होता, तो मेरे बच्चे जल्दी मुझे बताओ हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 1 2 3। इसका नाम था साइक्लोप्रोपेन, लाइक दिस हियर साइक्लोप्रोपेन। लेकिन इसमें एक ब्रांच भी अटैच की है मैंने, यहां पर ना, ये ब्रांच, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? मीथाइल। आपने इसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन कंसीडर किया, मीथाइल। आपने लिखा मीथाइल, मीथाइल, और ये पेरेंट चेन है ना, साइक्लोप्रोपेन। कंपाउंड का नाम क्या होगा? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें पोजीशन शो नहीं की मैंने, क्यों नहीं शो करी? क्यों? अंडरस्टूड है कि देखो आपने मिथाइल ग्रुप को अलग कंसीडर किया है और साइक्लोप्रोपेन की चेन में मिथाइल ग्रुप अटैच है। किस कार्बन से अटैच है? क्योंकि ये कॉर्नर है, तो जिस कार्बन से वो अटैच है वही अंडरस्टूड है कार्बन नंबर 1 है, तो उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक से ज्यादा अगर रेडिकल्स होते हैं तो फिर उनकी नंबरिंग देते हैं। क्या होगा अभी बताता हूं मैं, फिलहाल इसको देखिएगा ना। तो ये आपका इसमें पोजीशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक और बात ना, इसी मॉलिक्यूल को आप लिख सकते थे, सो सिंपल, इसी मॉलिक्यूल को आप इस तरह भी लिख सकते थे बेटा। ये देखिए वही आ गया आपका साइक्लोप्रोपेन, लाइक दिस। और
और इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये आपने ऐसा लिखा। अब यहां पर आपने कुछ लगाया नहीं, इसके ऊपर आपने कुछ ना, क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं, देखो साइक्लोप्रोपेन की चेन और ये भी कार्बन है, इसका मतलब एक कार्बन यहां पर है, ये रहा, और बाकी 3 साइक्लोप्रोपेन की चेन में अटैच। यू मे राइट द सेम मॉलिक्यूल लाइक दिस। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने अभी कहा पोजीशन नंबर वाली बात ना, आप परेशान ना हो, रिलैक्स। एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, जरा उसको देखिएगा ना, ठीक है? इधर देखिएगा। इस स्ट्रक्चर को देखिएगा। चलिए, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपके सामने, इसका नाम देना है। अब देखें, इसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप था, इसमें एक मिथाइल भी है और एक मिथाइल भी है सब। अब यहाँ पे हम नंबरिंग देंगे, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ भी। अच्छा, तो पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4। अब देखो, अब आपने क्या करना है, इथाइल 3 इथाइल। अब आप क्या लिखेंगे बेटा? 3 इथाइल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ई कम्स बिफोर एम। 3 पर इथाइल ग्रुप है, ये रहा, और 1 पर मिथाइल ग्रुप है, तो आपने लिखा 1 मिथाइल साइक्लिक स्ट्रक्चर है और 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, एक और बात ना, अगर मैं ये 1 ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप डिड्यूस हो रही है। लेकिन आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ज्यादा पोजीशन में नाम देना जरूरी होगा, ठीक है? अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और, आइए इधर देखिएगा। टॉप पर एक स्ट्रक्चर और बनाना चाहूंगा मैं, यहां देखो बेटे बेटे, फॉर एग्जाम्पल से ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है? अब इस स्ट्रक्चर में देखें, हमारे पास ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये इथाइल ग्रुप है, और ये पेरेंट चेन आपकी साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ना, साइक्लोहेक्सेन। तो अब मुझे बताइए नंबरिंग, देखो बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें एक सिमेट्री है, तो आप नंबरिंग जब शुरू करेंगे तो वेरी वेरी सिंपल। ये देखिए बेटा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। अब आप बोलेंगे सर नंबरिंग वहां से क्यों शुरू की, यहां से भी तो कर सकते थे। कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5, तो इसकी पोजीशन 5 हो जाएगी, ओवरऑल पोजीशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, तो अब मुझे बताइए 5 इथाइल आपने लिखा, 5 इथाइल 1 3 1 3 बेटा, 1 3 1 3 दोनों है ना, डाई मिथाइल 1 3 डाई मिथाइल। देखो 5 इथाइल 1 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, यानी कि कंपाउंड का पूरा नाम होगा 5 इथाइल 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह के यूनिट्स आपके सामने आ सकते हैं। आइए एक दो यूनिट और डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल से होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट। तो साइक्लिक जब स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें पोजीशंस को हम देखते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। रूल सारे वही हैं, नियरेस्ट पोजीशन, आपकी प्रायोरिटीज हमेशा क्या होंगी, नियरेस्ट पोजीशन, ठीक है? आइए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जांपल से बॉयज एंड गर्ल्स, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर मेरा दिल है बनाने का।
इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन सिंपली। अच्छा अब इसमें एक आ गया फॉर एग्जांपल CH3, तो इसका नाम क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब क्योंकि बार बार नहीं लिखूंगा, अच्छा एक और मिनट ना, एक मिनट थोड़ा सा चेन एक्सटेंड करते हैं। अब मुझे बताइए क्या नाम होगा, ये हो गया इथाइल ग्रुप C2H5 और ये साइक्लोप्रोपेन, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। एक मिनट ना, क्या नाम होगा जी इसका, इथाइल, इथाइल, इथाइल और साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो जरा देखिएगा इसी कॉन्टेक्स्ट में ना, इधर देखिए। फॉर एग्जाम्पल से क्या नाम है इसका, एक मिनट रुकिएगा, इसका नाम क्या होगा जी, साइक्लो, क्या नाम होगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है जी, साइक्लोप्रोपेन। अब मैंने नीचे क्यों लिखा, उसका कोई रीजन है, साइक्लोप्रोपेन है ना। अच्छा यहां पर अगर एक मिथाइल ग्रुप आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। रिलैक्स होकर पढ़ना है ना थोड़ा सा, मिथाइल, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अच्छा एक मिनट, यहां पर अगर ये हटा दूं मैं और दो चेन ले लूं ऐसे करके, तो अब मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। अब दो कार्बन की चेन है, ये पैरेंट चेन में 3 कार्बन, वो लॉन्गेस्ट चेन, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, लाइक दिस, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। मैं जहां पे लाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक CH3 ग्रुप और बढ़ा दिया, अब मुझे बताइए, अब यहां पर ये तो हट गया ना भाई, एक कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, अब 3 कार्बन वाला क्या है, प्रोपाइल। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो इसको हमने पैरेंट चेन लिखा साइक्लोप्रोपेन और इसको हमने रेडिकल अल्काइल ग्रुप लिखा इथाइल, क्योंकि इसमें कार्बन कम है, पैरेंट चेन में 3 कार्बन थे, तो लॉन्गेस्ट चेन साइक्लोप्रोपेन, ये इथाइल। लेकिन अब मसला दूसरा हो गया, इस चेन में भी देखो, इस चेन में भी हमारे पास 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन, ये देखो इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है। अब क्वेश्चन ये है कि हम पैरेंट चेन किसे लें भाई। यहां पर तो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर को पैरेंट चेन लिया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा थे, उसको हमने अल्काइल ग्रुप लिखा क्योंकि इसमें 2 कार्बन थे। लेकिन अब तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो अब 2 बातें पॉसिबल हैं, इसकी 2 बातें पॉसिबल हैं। एक अगर मैं इसको यहां से कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट बात चलिए जी, बस ये समझिएगा क्यों। ये देखो जो कॉर्नर से फ्री होता है तो हमने उसको क्या लिखते हैं भाई, 1 कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, तो 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, और ये आपकी पैरेंट चेन हो गई साइक्लोप्रोपेन। एक तो चांस ये है, दूसरा चांस ये है कि भाई देखिए अब क्योंकि दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम इससे रेडिकल के तौर पर लिखें, यानी कि प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल, यानी कि ये आपने इसको कंसीडर किया है रेडिकल, आपने इसको कंसीडर किया रेडिकल, आपने इसे कंसीडर किया साइक्लोप्रोपाइल, और लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन प्रोपेन। अब ये 2 नाम पॉसिबल हैं आपके। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एक बड़ा डिस्प्यूटेड बात हो जाती है, बहुत सारे लोग जो है वो शायद इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ना कर पाए, इसलिए मैं बड़ा फोकस करना चाह रहा हूं। रिपीट, आपने इसे पैरेंट चेन लिया था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा थे, आपने लिखा साइक्लोप्रोपेन, और ये आपका अल्काइल ग्रुप इथाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन इस केस में 2 बातें हैं कि अब नंबर ऑफ कार्बन्स बराबर हो चुके हैं, इसमें भी 3 है, ऐसा ही है बेटा, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू रूल्स जब सेम नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट चेन में आ जाते हैं तो आईयूपीएक रूल्स क्या कहते हैं, आपकी पैरेंट चेन सिंपल होगी। तो
तो मुझे एक बात बताइए, आपकी सिंपल चेन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर सिंपल है या ये नॉर्मल ओपन चेन ये ज्यादा सिंपल है? अब परसेप्शन चेंज हो चुका है, तो अकॉर्डिंग टू रूल अब इसकी पेरेंट चेन ये होगी बेटा, ये इसकी पेरेंट चेन होगी, ये आपकी पेरेंट चेन होगी, ठीक है। और ये भाई मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, तो साइक्लोप्रोपेन का रेडिकल क्या कहलाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। तो आपने इसे रेडिकल लिखा और इसे आपने पेरेंट चेन, तो किस कार्बन पर अटैच है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो इसका नाम होगा बेटा 1 साइक्लोप्रोपाइल longest chain of propane, not n propyl। देखो उसमें दो बातें थी ना, ऊपर वाले नाम में आपने इसे पेरेंट चेन लिखा था, इसे प्रोपाइल को रेडिकल लिखा था, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल्स सेम नंबर ऑफ कार्बन जब आते हैं तो सिंपल चेन पेरेंट चेन होगी और अटैच ग्रुप एज ए रेडिकल, तो साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, नॉट दिस वन। याद है इसका ये नाम नहीं होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, द करेक्ट नेम इज योर 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। और ये कब होगा केस? व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इक्वल। और अच्छा मुझे एक छोटी सी और बात बताएं, अगर ये 4 कार्बन की चेन होती है, यानी कि प्रोप नहीं बल्कि ब्यूट की चेन होती है, तो क्या आप इसे ब्यूटाइल लिखते? नहीं, पेरेंट चेन तो आपकी लॉन्गेस्ट होती है, तो आपने इसे पेरेंट चेन लिखा और इसे आपने रेडिकल के तौर पे लिखा। इस लेक्चर को आज के मेरे इस लेक्चर को बार बार सुनना है, और खास तौर पे ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने समझाया ना, ये कि देखिए यहां पर नंबर ऑफ कार्बन्स कम थे, आपने इसे रेडिकल लिखा, इसे पेरेंट चेन लिखा, लेकिन जब नंबर ऑफ कार्बन्स बराबर हो जाएंगे तो सिंपल चेन पेरेंट चेन होगी और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो एज ए रेडिकल के तौर पर अटैच हो जाएगा। थैंक यू सो मच, होप यू विल मेक अ गुड प्रैक्टिस अबाउट सच टाइप ऑफ एल्केन्स। और बहुत ज्यादा कोड नहीं होते लेकिन होते हैं, इसलिए मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है आपको समझाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क ऑन व्हाट्सएप और इन फिजिकल क्लासेस। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू conduct your physical classes. Thank you so much. Stay blessed. Thank you.